pride to share with you all that the students of our school have participated in different sports events organized by CBSE under CBSE Cluster 5 across different districts of Uttar Pradesh. And they have brought laurel to our school by winning trophies. To begin with, the girls for the very first time they participated in under 19 Kho and they were among the first top 5 teams of Kho and they won the best performing team. Give them a big round of applause to do the honor. I now request our proud principal on stage, Mr. Reddy. All the participants along with the PTIs are requested to come on the stage. On stage. Thank you. This is the result of their determination, hard work and perseverance. Please give them a big round. Under 17 tournament which was organized at Harsh Chandra Mishra Public School at Azamgarh, in which 40 teams participated and our boys made us proud by winning runners-up trophy. Give them a big round of applause and request all the participants to be on the stage. Once again, I will request our principal and vice principal to do the honor. Our boys have proved that if you are determined to achieve something, you can. Nothing can stop you. Mitra ma'am. And I would also like to inform you that they have won this trophy after 15 years. 15 years ago they won the third position and this time they are runners-up. Wait children, the list is not over yet. Now, our students participated in Taekwondo, which was held in Nanak Public School, Jaunpur, and one of our students, Palak Sharma, won bronze medal. As a token of appreciation and encouragement, our school is honoring her with a trophy. Once again, I request all the PTIs, our principals and vice principal to do the honor. Give her a big round of applause. Years of hard work, dedication, determination has led her to achieve this. Thank you, dear sisters. Good morning, everybody. Indeed, this is a happy moment for all of us. The students, we see the hard work of the students in different fields. The other day we gave away the certificate of toppers, and we have some class toppers are waiting, and with that I am really proud to give away the trophies. We are not only shining in the school, we are shining outside also with so many activities such as sports and other talent show. And this proves that our students are really good, and this also proves that our teachers are really hardworking. And I appreciate all of you and appreciate all the hard work that you have done. I'm really happy to say that the girls, those who went for the Kho, we were not planning to send, but girls proved that we can achieve.
and they had the willpower again and again calling. I was in South when they asked. I said, let us wait. And somehow they were able to convince us, and they have done well. And I'm really happy those who went not only getting the trophy, but they have proved that they are the best in front of everybody else. I heard from the teachers, even in discipline outside, they were appreciated. So I'm really happy about it, and I appreciate all of you. Let us together give a big round of applause to all the teachers, all the students, those who have done. And I hope in future we will have many more prizes like this. And I take this opportunity to thank our sports teachers who were guiding them and sacrificing, going along with them and spending the time. We know that when they go out, they don't get the facilities. They get the facilities as you all get. So managing everything, they were really able to guide them and support them, and they were ready to do anything for them. Thank you, dear teachers, and all the best to all of you. कैसा आपको लगा और क्या कहना चाहिए इस पे? Firstly, I would be grateful to our sisters to give us this biggest opportunity. This is our first time and we managed. We were the best performer in the clusters CBSE under 19 और हम लोग बेस्ट परफॉर्मेंस को हम लोग को वहाँ से ट्रॉफी मिला और वहाँ पे हम लोग को बहुत सही लगा क्योंकि ये चांस हम लोग को पहले तो नहीं मिला था और इसमें हम लोग इतना किए वो बहुत सही था और हमारे सर हमारी मैम हम लोग को बहुत सपोर्ट की और सिस्टर को हम लोग को बहुत सपोर्ट की थी क्योंकि वही हम लोग को चांस अपॉर्चुनिटी और बहुत ज़्यादा हम लोग को मोटिवेट भी वही की कि हम लोग और सही कर सकते हैं और भी मैचेस अच्छे से। आपकी टीम खो-खो में बाहर रही किस तरह की तैयारी करके गई थी? It was a hard time for us to prepare all that. Our teachers guided us so much and it was a heartful moment that we went outside and it was nice that we played with those teams. They were very strong and when we went there we learned something and that was a nice moment for us. खो-खो की टीम आपकी बाहर गई, कैसा लगा और क्या तैयारी करके गई थी? हम लोग बहुत अच्छी सी तैयारी करके गए थे। इवन सिस्टर ने हमें परमिशन दी थी 3 पीरियड्स में खेलने के लिए ताकि हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो पाए और हमारा कोई क्लास भी मिस ना हो। एंड उसके बाद भी हमने पूरी अपना ट्राई किया, हमने बहुत अच्छी कोशिश की एंड हमें बेस्ट टीम का अवार्ड मिला और हमारे नितिन सर, सुमित्रा मैम, सतीन सर, ये लोग तो बहुत अच्छे टीचर्स हैं, बहुत अच्छे से इन्होंने हमें गाइड किया, इसकी वजह से हम लोग को ये ट्रॉफी मिला एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू ऑल आवर स्कूल मैनेजमेंट। आप अपनी टीम के साथ बाहर गई खो-खो कंपटीशन में, क्या तैयारी करके गई थी और क्या लगा आपको? टीचर्स ने हमें 3 पीरियड्स में अलाउ किया खेलने के लिए। देन फिर हम शाम को इवनिंग में स्कूल आते थे, प्रैक्टिस करते थे। टीचर्स गाइडेड अस, सुमित्रा मैम, नितिन सर, सतीन सर, दे ऑल गाइडेड अस अ लॉट। फिर आवर प्रिंसिपल gave us a very big platform, like we went there and that was a very heartful moment for us and we are very thankful to all them. ताइक्वांडो टफ माना जाता है मगर उसमें आपने पूर्वांचल में एक स्थान पाया, कैसा लगा और क्या तैयारी की थी? फर्स्टली तो मैं अपने टीचर्स को बहुत ज़्यादा, अपनी सिस्टर को बहुत ज़्यादा थैंकफुल रहती हूँ और मैंने बहुत मेहनत की थी। मेरा 2 साल से मेडल नहीं आ रहा था बट इस साल मेरे को मेडल आया तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं सब अपने टीचर्स को बहुत थैंकफुल हूँ कि मतलब उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया है, मुझे जानने में हेल्प की और ख़ासकर मैं सुमित्रा मैम को बहुत सपोर्ट मानती हूँ कि मतलब उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है। कहाँ प्रैक्टिस करती थी? स्कूल में करती थी प्रैक्टिस? मैं स्कूल में हाँ करती थी और मैं घर पे भी करती थी और मेरे को स्कूल में बुलाया जाता था फिर मेरे को प्रैक्टिस करने के लिए और टीचर्स ही मेरा सपोर्ट करते थे। खो-खो टीम में आप बाहर गए और आप रनर अप रहे, कैसा लगा और क्या तैयारी थी? सबसे पहले मैं अपनी प्रिंसिपल को थैंक्स कहना चाहूँगा कि उन्होंने हम लोग को ये अपॉर्चुनिटी दी बाहर जाके क्लस्टर में पार्टिसिपेट करने की और फिर अपने स्पोर्ट्स टीचर को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने हम लोग को इतना मोटिवेट किया खेलने के लिए, हम लोग को बताया कि कैसे खेलना है और खेलते समय भी उन्होंने बहुत हम लोग को मोटिवेट किया है। जैसे
कुछ कुछ शब्द बोलते थे, जैसे कि जीत जाओ पिज्ज़ा खिलाएंगे और ऐसे और ढेर सारे चीज़ बोली। और हम लोग की तैयारी बहुत अच्छी थी हम लोग के हिसाब से। हम लोग को यहाँ पे लगता था कि हम लोग कुछ ना कुछ तो आ ही जाएंगे, पर ये नहीं लगता था कि हम लोग फर्स्ट रनर अप आ जाएंगे। और जब हम लोग को जब फाइनल मैच खेले जब हम लोग को पता चल गया कि कंफर्म हो गया कि हम लोग फर्स्ट रनर अप हो गए हैं, तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, क्योंकि हम लोगों ने एकदम नहीं सोचा था कि हम लोग उतना आगे जा पाएंगे। क्योंकि CBSE क्लस्टर बहुत बड़ी बात होती है, हम लोग कभी नहीं सोचे थे इतना बड़ा चीज़ हम लोग कर पाएंगे। और मैं अपनी टीम वालों को भी बोलना चाहूँगा, हम लोग बहुत अच्छे से खेले, हम लोग का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था। जैसा हम लोग यहाँ से प्रैक्टिस करके गए थे वैसा ही खेले थे। कुछ गलतियाँ हुई थी हम लोग से बीच में, पर हम लोग फिर जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ी उसने वैसा सपोर्ट किया था टीम में। आपकी टीम रनर अप रही खो-खो में और आपने टीम को लीड किया, क्या कहना चाहेंगे? लीड किया मतलब कि सब खेले तो सभी, और स्ट्रैटेजी और मेन चीज़ स्ट्रैटेजी थी, जिससे कि पूरी टीम को कोई नाराज हो गया, कट गया। एक सेकंड से खो-खो टीम में आप बाहर गए, क्या कहना चाहेंगे इस पर? आप जीत के आए, रनर अप रहे, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं प्रिंसिपल, टीचर्स और पेरेंट्स को थैंक यू करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। उनके बिना हम लोग इस स्तर पर पहुँच पाते तो मुझे मुश्किल नहीं था। फिर मैं ये बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले तो मैं प्रिंसिपल, टीचर्स और पेरेंट्स को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना हम लोग वहाँ पे पहुँचना सोच भी नहीं सकते थे। फिर काफ़ी अच्छा लगा हम लोग को वहाँ पहुँच के, क्योंकि CBSE क्लस्टर एक बहुत बड़ी बात होती है। टोटल 40 टीम वहाँ पे आई थी, जिसमें हम लोग सेकंड प्लेस आए, हम लोग रनर अप रहे। इस बात की हम लोग को बहुत खुशी हुई। फिर प्रिंसिपल ने हमारा बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने आखिरी के 4 पीरियड हम लोग के लिए फ्री कर दिए कि तुम लोग जी लगा के खेलो, ताकि हम लोग अच्छा अपना जो है प्रदर्शन दिखा पाएँ। फिर क्या कहते हैं, वहाँ पे हम लोग गए, वहाँ पे भी बहुत अच्छा लगा। वहाँ के सिस्टम हम लोग को बहुत अच्छा लगा। और हमारे सर जो कोच थे, जो हमारे साथ गए थे, नित्यानंद सर, उन्होंने भी हमें खूब मोटिवेट किया कि उनकी बातें सुन के अपने में मज़ा आ जाता था, मतलब खेलना ही है हम लोग को। तो बस जो भी वो बहुत अच्छा हुआ, बस यही बोलना चाहूँगा। सर, आपके बच्चे खो-खो में रनर अप रहे, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं स्कूल मैनेजमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि एक 16 ईयर बाद ये अचीवमेंट मिला है हमारे स्कूल को। जहाँ पे हम लोग गए थे वो हरिश्चंद्र मिश्रा पब्लिक स्कूल आजमगढ़, वहाँ बहुत अच्छी व्यवस्थाएं थी, हम लोग खेले वहाँ पे। और साथ साथ हम लोग अपने स्कूल के जो हमारे बच्चे थे वो बहुत बेहतर प्रदर्शन किए। फर्स्ट मैच जो था हम लोगों का वो 0-16 से 17 पॉइंट हम लोगों का था, और अदर जो टीम थी उसका 0 पॉइंट था। इतना अच्छा प्रदर्शन रहा। जब हमारी टीम पहुंची फाइनल मैच के लिए, तो यश विद्या मंदिर वो टीम वहाँ फैजाबाद की टीम थी, वहाँ पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हुआ कि मैच को कैसे खेला जाए। मैं बार बार बच्चों को अपने मोटिवेट करता था कि तुम लोग अच्छे से खेलना। थोड़ी बारिश भी हो गई थी तो थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, लेकिन ग्राउंड का रखरखाव बहुत अच्छे से किए थे वहाँ के मैनेजमेंट। तो बहुत अच्छा प्रदर्शन किए हमारे बच्चे। और सबसे सिस्टर हमारी जो हैं वो बहुत सपोर्टिव हैं। इवनिंग टाइम में भी हम लोगों को बोली थी कि आप लोग प्रैक्टिस करवाइए बच्चों को, तो हम लोग 1 घंटे के लिए इवनिंग टाइम में भी आते थे, हमारे बच्चे आते थे, प्रैक्टिस करते थे यहाँ पे। और जो हमारे कॉन्वेंट स्कूल में सिस्टर ने स्पोर्ट्स का माहौल दिया है बच्चों को, स्पेशली क्लास 5th से लेकर के क्लास 12 तक के बच्चे, हर एक वीक में 2 गेम पीरियड मिलता है बच्चों को खेलने के लिए यहाँ। और पढ़ाई का भी बहुत अच्छा माहौल है हमारे स्कूल में। स्पोर्ट्स पढ़ाई एक कहा जाए कि फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल ऑल डेवलपमेंट हमारे स्कूल में होता है बच्चों का। और थैंक यू सो मच, आप भी आए हमारे प्राइम जासूस से, उनके लिए भी थैंक यू है। ऐसे खिंचवाएंगे, ये सीट हटा दो, अपना लगा लो, बाद में ऐसे हो जाए। हाँ, इसको अकेले कर लो।
मिस्टर आपके बच्चे खो खो में रनर रहे और लड़कियों ने भी बेस्ट टीम का अवार्ड पाया और टैइक्वांडो में भी बच्ची एक गई थी, वो भी अच्छा अपना प्रदर्शन की, क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली ये बहुत खुशी की मौका है मैं, क्योंकि मेरे बच्चे हर जगह में अच्छे करते हैं. Like they went for basketball, they went for kabaddi, and so all those field they are coming up, and our school is coming topper for the academics also. तो हमारे बच्चे पूरी कोशिश करते हैं और सारे कोशिश के पीछे हम लोग का टीचर्स का हाथ है. टीचर्स उन लोग को मोटिवेट करते हैं, उन लोग को साथ रहते हैं, एक फ्रेंड्स की तरह, एक गाइड की तरह हमेशा. इधर मेरा काम तो बहुत कम है, लेकिन ज़्यादा काम हमारे टीचर्स करते हैं. सो मैं अपने बच्चों के प्रति और टीचर्स के ऊपर बहुत प्राउड फील करती हूँ, क्योंकि वो मुझे लगता है शायद ही अगर ये टीचर्स ना हो तो बच्चे उतना अच्छा नहीं कर पाते. तो हमारे स्पोर्ट्स टीचर्स और हमारे सारे टीचर्स एक टीम जैसे काम करते हैं. वो टीम के वजह से आज हम लोग इतना जो भी प्राइस हम लोग पा रही है उसी के वजह से ये. तो आई वांट टू कंग्रेचुलेट ऑल माय टीचर्स एंड आई वांट टू जस्ट आई एम ग्रेटफुल टू माय टीचर्स एंड ऑल स्टाफ एंड ऑल आवर स्टूडेंट्स.